गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरनल कंबशन इंजन। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंप्रेसर का पार्ट 3। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में हम देखेंगे सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर है ये एक डायनामिक कंप्रेसर का टाइप्स है। तो पहले डायनामिक कंप्रेसर के बारे में, in this compressor velocity of air is increased which is converted to high pressure at the outlet of the compressor by varying the area of flow. In this compressor a small change in compression ratio produce marked change in compressor output and efficiency. They are better suited for applications involving very high capacity more than 12,000 CFM. Dynamic compressor are classified centrifugal compressor and axial compressor. As shown in diagram, आप देख पा रहे हैं एक डायनामिक कंप्रेसर है जो एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी हम इसी को बोल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक डायग्राम है। तो वी नाउ डिस्कस centrifugal air compressor. Centrifugal compressor use a rotating disc or impeller in a shaped housing to force the gas to the rim of the impeller, increasing the velocity of the gas. A diffuser section, also called plenum, converts the velocity energy to pressure energy. Hence we get air at high pressure as shown in figure. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। ये हमें जनरली देखने को मिलता है। दे आर प्राइमरीली यूज फॉर कंटिन्यूअस स्टेशनरी सर्विस इन इंडस्ट्रियल सच एज ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट एंड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट. They are generally single stage machines, but with multiple staging they can achieve high output pressure more than 69 MPa. The centrifugal air compressor is an oil-free compressor by design. The oil lubricated running gear is separated from the air by soft seal and atmospheric vents. It's continuous output machine. And now we discuss axial flow compressor. Axial flow compressor are dynamic rotating compressor that use arrays of fan like airfoils to progressively accelerate air. The arrays of airfoils are set in row, usually as pairs, one rotating and one stationary. The rotating airfoils, also known as blades or rotors, accelerates the fluid. The stationary airfoils, also known as starters or vanes, decelerate and redirect the flow direction of the fluid, preparing it for the rotor blade of the next stage. जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सियल कंप्रेसर. एक्सियल कंप्रेसर में ब्लेड्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है. इस तरह से इसकी वर्किंग होती है, रोटेट करता है. ब्लू एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये इम्पेलर की फॉर्म में ब्लेड्स इसमें कनेक्टेड है. नाउ एक्सियल कंप्रेसर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मल्टी स्टेज विद द क्रॉस सेक्शनल area of the gas passage dimensioning along the compressor to maintain an optimum axial Mach number. They are used where there is a requirement for a high compression ratio, high flow rate or a compact design. Now we can discuss compressed air system component, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट यहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं. कि ये चूज़ करने से पहले कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कंप्रेसर को, एक अप्रोप्रिएट कंप्रेसर जो है हम सेलेक्ट करते हैं वो चूज़ हम कैसे करेंगे. व्हेन चूजिंग ए कंप्रेसर द पैरामीटर्स ऑफ सुटेबल फॉर जनरली द रेंज ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्री एयर डिलीवरी एंड वर्किंग प्रेशर. द जनरल सिलेक्शन क्राइटेरियन फॉर कंप्रेसर इज गिवन बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ वी
discuss comparison or basis of unloading. Along the working pressure, delivery capacity and efficiency, the variation in power consumption during unloading, the relative efficiency of compressor at various loading component, जो इनके कंपोनेंट होते हैं उनको देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, फुल लोड पर क्या है एफिशिएंसी, पार्ट लोड पर क्या है एफिशिएंसी, नो लोड पर क्या रहेगी कंप्रेशर की। इस तरह से इनमें देखते हैं कि इट कैन बी सीन दैट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर आर मोस्ट एफिशिएंट एट पार्ट लोड कंडीशन एज वेल एज नो लोड कंडीशन। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है जब उनमें पार्ट लोड की कंडीशन होती है, किसके रेस्पेक्ट में, एज वेल एज नो लोड कंडीशन। इस तरह से तो इनके कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे। इनटेक एयर फिल्टर, कंप्रेशर, इंटर स्टेज एंड आफ्टर कूलर, एयर ड्रायर्स, मॉइस्चर ड्रेन टैप्स, रिसीवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइपिंग। एंड नाउ हम एक एक करके सभी को देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम विच आर crucial to the working of the system. The compressor takes in air and compress it to the required pressure. Good control and maintenance is the key to saving energy here. Now the air receiver is a pressure vessel that act as a reservoir to store and cool the compressed air and help to ensure reduced pressure variations from the compressor. The air receiver serves the following function. एयर रिसीवर का एक डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एयर रिसीवर बोलते हैं इसको। इट डम्पेंस pulsation entering the discharge line from the compressor, serves as a reservoir for sudden or unusually heavy demands in excesses of compressor capacity, prevents too frequent loading and unloading of the compressor, separates moisture and oil vapor, allowing the moisture carried out from the aftercooler to precipitate. And now next, interstage coolers. Interstage coolers cool the air before it enters the next stage inside the compressor to reduce the work of compression and increase efficiency. एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी यूज हो सकता है। जब जो है हमारा कंप्रेशर में कंप्रेशर जो वर्क है उसमें अंदर एंटर करने से पहले जो नेक्स्ट स्टेज होगी हमारी, कूल एयर बिफोर एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज होगी उससे पहले एंटर करेगी। यहाँ पे इंटर स्टेज कूलर होता है यहाँ पे, तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सेक्शन व्यू ऑफ ए वाटर कूल्ड इंटरकूलर का ये सेक्शन व्यू हमने लिया है। यहाँ पर प्रेशर रिलाइफ वाल यहाँ पे लगी रहती है ऊपर, कूलिंग वाटर इनलेट इधर से रहता है, कंप्रेस्ड एयर इनलेट राइट साइड में है, कूलिंग वाटर आउटलेट भी राइट साइड में, लोअर पोर्शन है जो वाल लगी है, अपर पोर्शन में इनलेट है, लोअर पोर्शन में आउटलेट है। सेपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में बॉटम में, कंप्रेस्ड एयर आउटलेट भी इधर लगा है। इस तरह से एयर रहेगी, कूलिंग वाटर के थ्रू एयर जो है कूलिंग और हमारी होती रहेगी इस तरह से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर कूलर्स रिमूव मॉइस्चर इन द एयर बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर इन ए वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। उसके बाद इसमें कुछ मॉइस्चर आ जाए आफ्टर कूलर, कुछ मॉइस्चर हमारे आ जाते हैं जब एयर कूल होती है तो इनमें मॉइस्चर आएंगे, तो उन मॉइस्चर को हटाने के लिए हम रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर। एक हमारा वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। एयर कूलर, दिस इज द एयर कूलर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एयर कूलर होगी, कूलिंग के थ्रू इसमें मॉइस्चर ना आए तो उसके लिए फिर वाटर कूलर, यहाँ पे वाटर कूलर है इस तरह से, वाटर कूल करेंगे इनको इस तरह से। इनटेक एयर फिल्टर एंड एयर ड्रायर treat the air to remove impurities such as water, dirt and oil that are present in ambient air being drawn into the compressor and those added by compressor. Filter chitter to dust impurities while dryer remove moist impurities. Various types of dryers are used like absorbent dryer, refrigerant dryer, heat of compression dryers. नाउ आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।